हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकली कि कॉम्प्रिहेंशन को एक्यूरेटली सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से पैसेजेस लिए हैं और उसे सॉल्व करके हम सीखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें तो उसे एज अ स्टोरी पढ़ें और उसके साथ इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का ट्राई करें। इसके लिए आप अपना फिंगर यूज़ कर सकते हो रीड करते वक्त, ताकि आपका फोकस बना रहे और आप पैसेज पे फोकस कर पाओ और उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, ऑथर का ओपिनियन क्या है, वो आप समझ पाओ। सेकंड थिंग है, जब भी आप रीड करें तो पैसेज के फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स एंड लास्ट 2 to 3 लाइन्स जो भी है उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स में इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट में कंक्लूजन होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। थर्ड थिंग है, जब भी आप रीड करें तो आप उसका जो सेंट्रल आइडिया है, क्रुक्स है, इसेंस है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें और ताकि आप पैसेज को अच्छी तरह समझ पाए और क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाए। तो चलो हम पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज फर्स्ट, फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ देयर इज़ अ क्रिटिकल नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ द स्टेट. So underline these two lines. The early debate among economists about the size of the government can be misleading. The need of the hour is to have an enabling government. India is too large and complex a nation for the state to be able to deliver all that is needed. Asking the government to produce all the essential goods, create all the necessary jobs, and keep a curb on the prices of all goods is to lead to a large cumbersome bureaucracy and widespread corruption. The aim must be to stay with the objective of inclusive growth that was laid down by the founding fathers of the nation, and also to take a more modern view of what the state can realistically deliver. This is what leads to the idea of an enabling state, that is, a government that does not try to directly deliver to the citizens everything that they need. Instead, it creates an enabling ethos for the market so that individual enterprise can flourish and citizens can, for the most part, provide for the needs of one another, and steps in to help those who do not manage to do well for themselves. For there will always be individuals, no matter what the system, who need support and help. Hence, we need a government that, when it comes to the market, sets effective incentive compatible rules and remains on the sidelines with minimal interference, and at the same time plays an important role in directly helping the poor by ensuring that they get basic education and health services and receive adequate nutrition and food. Again, underline last 2 to 3 lines from this, because this thing conclude the passage. Now we have finished with the passage reading. अभी हम questions देखते हैं. According to the passage, the objective of inclusive growth was laid down by the founding fathers of the nation. Second statement is, need of the hour is to have an enabling government. Third statement is, the government should engage in maximum interference in the market processes. Fourth statement, there is a need to change the size of the government. Which of the statement given above are correct? जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट बेस्ड है, उसका आंसर हमें पैसेज पे बेस्ड ही देना है। पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है और अपना पर्सनल नॉलेज भी यूज़ नहीं करना है आंसर को सिलेक्ट करते वक्त। तो जो भी इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो जो आउट ऑफ स्कोप है पैसेज के, वो आपको डायरेक्टली एलिमिनेट करना है। इसके लिए उन ऑप्शंस को आप पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके साथ आप क्रॉस चेक कर सकते हो, या इजीली आप अगर पैसेज को अच्छी तरह रीड कर लिए हो तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन से स्टेटमेंट है वो जो आउट ऑफ स्कोप है पैसेज के।
तो उसको एलिमिनेट करिए। और सेकंड थिंग, जब भी आप पैसेज के आंसर्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप इजीली राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। थर्ड थिंग, जिस ऑप्शंस में, जिस स्टेटमेंट्स में आपको एक्सट्रीम वर्ड्स नज़र आए या दिखाई दे, उनको आपको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है। अगर वो एक्सट्रीम वर्ड्स पैसेज में भी आए हैं तो ठीक है, वरना अगर सिर्फ ऑप्शंस में दिखाई दिए तो आपको उन्हें डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है। कुछ केसेस में अगर एक्सेप्शन हो तो आप वैसा नहीं कर सकते हो, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स ऑप्शंस में आए तो वो ऑप्शन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे आपको उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना चाहिए। और क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आउट ऑफ स्कोप ऑफ पैसेज मत जाइए, उसका आंसर पैसेज के इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ही दीजिए। नाउ we will read again the statements. The objective of inclusive growth was laid down by the founding fathers of the nation. Yes, this is given in the passage. Here you can see the objective of inclusive growth that was laid down by the founding fathers of the nation, right? So that is given in the passage. So this statement is correct. Second statement, need of the hour is to have an enabling government. Yes, this is also given in the passage. Yes. The need of the hour is to have an enabling government. Yes, this is also given in the passage. So first two statements are correct. First two statements are right. Now third statement, the government should engage in maximum interference in market processes. तो ये जो है स्टेटमेंट, ये जो ऑथर का जो व्यू है पैसेज में दिया उसका अपोजिट है, क्योंकि ऑथर इज सेइंग देयर शुड गवर्नमेंट शुड एंगेज इन मिनिमल इंटरफेरेंस इन मार्केट प्रोसेसेस। एज यू कैन सी इन द पैसेज, there should be minimal interference by the government. Yes, minimal interference should be there by government in the market process. So this statement is opposite view of the passage. So eliminate this option. Fourth statement, there is a need to change the size of the government. Yes, again this is also out of the scope of the passage. Nowhere in the passage author discuss this view, so eliminate this also. Author is talking about only size but not talking about the changing the size of the government. Yes, the early debate among economists about the size of the government can be misleading, but he is not talking about the changing the size of the government, so eliminate that option also. So eliminating 3 and 4, you can come to your right answer. So eliminate 3 and 4 and you will get right answer, that is A. Now second question, according to the passage the strategy of inclusive growth can be effected by focusing on. तो स्ट्रैटेजी जो भी है इंक्लूसिव ग्रोथ की, वो इफ़ेक्ट कैसे होगी, किस पर फोकस करने के बाद वो इफ़ेक्ट होगी। तो हम इसको रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को। मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन्स इन द कंट्री। मैंने जैसे बताया पहले, जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स है ऑल, ओनली, ऑलवेज, मस्ट, इनको आपको जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स है उनको आपको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना है उस ऑप्शन को। सो एलिमिनेट दिस ऑप्शन, मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट इज इंक्रीजिंग द रेगुलेशंस ओवर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
यस, पैसेज इज़ नॉट एट ऑल सेइंग अबाउट दिस। ऑथर ने कहीं पर भी पैसेज में ये डिस्कस नहीं किया है, तो ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज है, तो एलिमिनेट दिस ऑप्शन आल्सो। सी ऑप्शन, कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, नहीं, ऑथर ने ये भी डिस्कस नहीं किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स को आपको गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, ऐसा कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी ऑथर ने डिस्कस नहीं किया है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कंट्रोल करना चाहिए। ऑथर कह रहा है कि मिनिमल इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को कुछ भी ज़्यादा करके कंट्रोल नहीं करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उस पर रेगुलेशन नहीं लगाने चाहिए, मिनिमल इंटरफेरेंस रहना चाहिए। सो एलिमिनेट दिस ऑप्शन आल्सो। Fourth statement, delivery of the basic services to the deprived sections of the society. Yes, author is talking about this basic services. So delivery of the basic services to the deprived sections of the society, ये author ने discuss किया हुआ है। Government that when it comes to the market sets effective incentive compatible rules and remains on the sidelines with minimal interference, and at the same time plays an important role in directly helping poor by ensuring that they get basic education, health services, and receive adequate nutrition and food. Basic education, health services, receive adequate nutrition and food. That means delivery of basic services to the deprived sections, delivery of the basic services to the deprived sections of the society. So this statement is correct. So D is the right option for this question. Third question, what constitutes an enabling government? First statement, a large bureaucracy? No, nowhere in the passage author discussed this, so this is out of the scope of the passage, so eliminate this option. So second option, implementation of welfare programs through representatives, this is also out of the scope of the passage. ऑथर ने कहीं पर भी पैसेज में ये डिस्कस नहीं किया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अभी हम देखते हैं, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ यू हैव बी एंड सी। सो रीड द थर्ड स्टेटमेंट, क्रिएटिंग एन इथोस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंटरप्राइज। तो पैसेज में हमें ऑथर ने डिस्कस किया हुआ है कि क्रिएट्स एन इनेबलिंग इथोस फॉर द मार्केट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो विदाउट रीडिंग 4 and 5 you can take the right answer by just reading the third statement, because in B option there is not present third statement 3. So in the C में जो है वो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3, 4 and 5. सो टेक दिस आंसर एज अ करेक्ट आंसर। अगर आपको 4 and 5 भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू दोज हु आर अंडर प्रिविलेज, ये भी ऑथर ने डिस्कस किया हुआ है। ऑफरिंग डायरेक्ट हेल्प टू द पुअर रिगार्डिंग बेसिक सर्विसेज, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके कि बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 and 5, अगर 4 के बारे में अगर आप श्योर नहीं हो तो 3 and 5 तो श्योर है, और 3 and 5 कौन से स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में दिया है, तो सी में दिया है। तो 3, 4, 5 एंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट, सो टिक द आंसर सी एज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट डज नॉट हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। नो, नोवेयर इन द पैसेज
ऑथर डिस्कस दिस दैट इट डज़ नॉट हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ये ऑथर ने डिस्कस नहीं किया हुआ है बिल्कुल भी, ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है। ऑथर ने कहा है कि अगर asking our government to produce all the essential good, create all the necessary job to keep curb on the prices of all the goods is to lead to a large cumbersome bureaucracy. It will lead to large cumbersome bureaucracy and widespread corruption. So he is not talking about the not having the sufficient bureaucracy. So first statement is wrong. Second statement, it does not promote inclusive growth. So state unable to deliver all that is needed because it does not promote inclusive growth. This is also out of the scope of the passage, क्योंकि ऑथर जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बता रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के बारे में कह रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो डी जो है आपका वो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल मैसेज बीइंग कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। सो इसका क्वेश्चन जो इसका आंसर जो है वो भी पैसेज पे बेस्ड ही देना है, पैसेज के बियॉन्ड जाना नहीं है, एक्सट्रीम कीवर्ड्स को एलिमिनेट कर देना है। सो खुद का पर्सनल नॉलेज यूज़ नहीं करना है आंसर देते वक्त। सो रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन शुड बी रिमेंबर्ड। यस, दिस इज गिवन इन द पैसेज, ये पैसेज में दिया हुआ है, तो अभी हम इसे करेक्ट मानते हैं थोड़ी देर के लिए। सो सेकंड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक अवेलेबल मोर स्कूल्स एंड हेल्थ सर्विसेज। दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज। अगर आपने पैसेज को अच्छे से रीड किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं पर भी ऑथर ने ये डिस्कस नहीं किया है कि मोर स्कूल्स एंड हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट नीड्स टू एस्टेब्लिश मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ द पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज को, पुअर जो पीपल है उनके नीड्स को पूरा करने के लिए। ये भी ऑथर ने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया है, ये तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज है। तो एलिमिनेट बी एंड सी। Now you have A and D. So read D. There is a need to rethink the role of the state in the achieving inclusive growth. तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये A and D जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है कि objective of the inclusive growth was laid down by the founding fathers of the nation. So A statement is correct, and D statement, for achieving inclusive growth there is a critical need to rethink the role of the state. So ऑथर को क्या कहना है, ऑथर का मैसेज क्या है इसमें, कि ऑथर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहा है पैसेज में, और उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए स्टेट का रोल क्या है ये ऑथर को बताना है। पैसेज में से ये मैसेज कन्वे करना है कि स्टेट क्या क्या कर सकता है गवर्नमेंट को इनेबल करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए। ये ऑथर का कहना है, ये ऑथर का मैसेज है, इस पर ज़्यादा फोकस किया है ऑथर ने। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स एंड लास्ट 2 to 3 लाइन्स ऑफ द पैसेज अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इसी में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आप जो पैसेज का सेंट्रल आइडिया है, थीम है, ऑथर का ओपिनियन क्या है, ऑथर का पर्पस क्या है पैसेज को लिखने का, वो आप समझ पाएंगे ईजीली। तो फर्स्ट ए जो ऑप्शन है उसमें ऑथर का ओपिनियन क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है वो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन जो है उन्होंने लीड किया है और उसको रिमेंबर करना ज़रूरी है, ऐसा कहा है। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये मैसेज कन्वे नहीं करना है
मैसेज कन्वे नहीं करना है ऑथर को, तो ऑथर को देर इज़ अ नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ द स्टेट इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। जो स्टेट का जो रोल है इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए, ये ऑथर को बताना है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। Hope so guys, you all of you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. तो नेक्स्ट जो पैसेजेस है वो वन बाय वन हम अगले वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक एक पैसेज लेंगे हम ईच लेक्चर में, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ और टाइम भी कम लगे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और हम सारे क्वेश्चंस पेपर्स जो है CSAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो सॉल्व करेंगे, और जो यूपीएससी का माइंडसेट क्या है उसको समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, और इसके हिसाब से हम हमारा माइंडसेट भी सेट कर लेंगे और क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेटली दे पाएंगे और एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। Thanks for watching.